We must rise against this judicial murder, a call to rise against a Supreme Court which you approach for bail now. That is the strength of my democracy. A call to rise against the President of India, to whom you go and implore and say, न्याय कीजिए. उनको जल्लाद कहने वाले उनके दस्तक घर पे जाकर दस्तक देते हैं, वो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करते हैं. ये मेरे लोकतंत्र की ताकत है. एक यहाँ पर सज्जन आज नहीं है. उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, कन्हैया इज माई मेंबर. ब्रदर, I agree. Madam, this is a poster which has the name of, unfortunately, and I look at this child as a child who has been mobilized as a weapon against the state. This is a child who must not have had an idea that India is not one, but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state. It bears the name of Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Rama Naga. They're all members of the student union. And apart from condemning the hanging of Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government. And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. On the 9th night, this transpires on the campus. On the 10th, this is a pamphlet which is stuck all across with these signatures. And it says that the public meeting was also disrupted for Mahishasur Martyrdom Day. What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Our government has been accused. And I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house, champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. Posted on the 4th of October 2014. A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say कि हाँ बच्चे हैं बोल रहे हैं माफ करो, हो सकता है. But how does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, शिक्षा को रणभूमि मत बनाओ. मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी. Today I am compelled to say this, Madam Speaker. Are these just slogans? I seek to quote a European philosopher, Roman at that, who said, "A nation can survive its fools and even the ambitious,
but it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely. His sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor. He speaks in the accents familiar to his victims. He wears their face and their arguments. He appeals to the baseness that lies deep in the hearts of men. He rots the soul of a nation. He works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city. He infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. आज अगर चाणक्य का मैं यहाँ वर्णन करती तो लोग कहते हैं सैफरन है, इसलिए आज एक रोमन फिलोसोफर को कोट किया और सोचा मैंने कि हमारे बच्चे सीखते कहां से हैं। एक प्रमाण आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं इस हाउस में, जो अभी अभी मेरे डेस्क पर आया है। यह किताब है हिस्ट्री की, कक्षा 4 के बच्चों के लिए। टीचर्स रीडर, व्हाट आर आवर टीचर्स टॉट। इस किताब की लेखिका है तीस्ता सेतलवाल। इस किताब को कमीशन करने वाले हैं यूपीए के कपिल सिब्बल साहब, वो यूपीए जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। किताब में क्या लिखा है, कक्षा 4 के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। In our text and our syllabus, I'm quoting, we continue to perpetuate the colonial legacy of portraying ancient India as synonymous with Hindu and medieval India past with the Muslim. I quote from this book, Madam Speaker. अरविंद सावंत जी महाराष्ट्र से हैं। ये किताब दी गई डॉन बॉस्को माटुंगा को, school of my colleague Piyush Goyal. When we teach Shivaji, Akbar, Aurangzeb as responsible educator, animators, we need to ask, which Shivaji do we take into the classroom? I am quoting, Madam Speaker. ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा। Congress politicians allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6. And I quote, Madam Speaker, Kashmir is a much demonized land today. That the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? My तकलीफ सुन लीजिए ओवैसी साहब, सुन लीजिए. Scenario 4 on page 5. Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period
one of the words given to the children to draft a sentence was the word arrive. Of the several children who raised their hand, the one that the teacher chose to read out is a sentence: when a Sikh arrived in Delhi, he was killed by a Hindu. Scenario 2, and the title is fascinating, calling Breeding Prejudiced Minds. This commissioned by the UPA, led by the Congress party, given to children in the 6th standard. They are taught scenario 3. Teaching of history in school boards all over Maharashtra has a single prescribed textbook on Shivaji. Teachers from the schools in Bombay have expressed great difficulty in controlling emotions. One of them has said, the schools which have an active enrollment of Muslim students. I rushed through the chapter on Afzal Khan and Shivaji's confrontation. It is a politically and socially loaded connotation. I can't meet eye to eye with my Muslim students, so I start my chapter with an apology. There are many Afzals in my class, says this teacher, teaching in class 6. I begged and I pleaded, don't make it about us and them. Our children are not vote banks. But nobody heard me. मैंने आज महोदया जिस कमेटी ने इन सारे किताबों का निरीक्षण किया, इन किताबों के खिलाफ उस वक्त की सरकार में एनसीईआरटी ने धावा बोलकर कहा ये किताबें मत बांटिए। एनसीईआरटी की बात को माना नहीं गया। वो एनसीईआरटी हमारी नहीं थी, हमारी सरकार की नहीं थी। जिस कमेटी ने इन किताबों को और इसके पीछे की पूरी वारदात को स्टडी किया, I am compelled to say one of the committee members is a Muslim vice chancellor appointed to his post as proposed by the Congress government. An income tax officer who served under the Congress government, now a Supreme Court lawyer. I did it so that I not be accused of politicizing something which should be a matter of concern for every Indian citizen, every parliamentarian. And what do those people say about the books that they read? This committee fails to understand as to what and whose purpose is this trust serving. By quoting from Pakistani authors writing pertaining to education of Indian students to an impressionable mind of a standard 6 student. This committee was enraged when the name suggested an intention and action, Allah's army in Pakistan, Hindutva hell in Hindustan. Madam Speaker, I have not shied away from answering any question in this house or the other. My plea is this. Across universities, when Vice Chancellor said we want to raise our flag proudly, they were condemned. Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, सारे के सारे VCRSS वाले हैं। शायद उनको पता नहीं है कि आज भी इस सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना, जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो। आज मैंने देखा, दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी, राहुल जी, they were like compelled, they should, we all should compliment each other, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है, वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई। 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की। हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, एहसान नहीं किया, न्याय किया, कोशिश की। ये कोशिश मैं हर दिन करती हूं। मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां न्याय है उस न्याय को अपना काम करने दो, जहां पुलिस है उस पुलिस को अपना काम करने दो। आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको। लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जहां जहां आपको लगता है चुनौती है, आज आपने कहा SC ST के बच्चे फैकल्टी होनी चाहिए, यही निवेदन मैंने सभी वाइस चांसलर से किया। मैंने I have myself requested to every vice chancellor that listen to all children, every university which functions under the aegis of the government of India, listen to children, for they come with their emotional legacies and their social challenges, and it is incumbent upon us to provide them refuge
and a productive life. My request is help me build this nation and not destroy it from within. Thank you, Madam Speaker. No, what is it? जो उन्होंने बोला है मैंने विस्तार से सुना है, विस्तार से पूरा उनको जो बोलना था उन्होंने बोला। एक ही चीज आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट वी डिड नॉट पॉलिटिकलाइज दैट इश्यू। वी वेर इन मिडस्ट ऑफ इलेक्शंस, जीएचएमसी का इलेक्शंस चल रहे थे। अगर सच्चे भी चाहते थे तो अगर आप मैडम बोलने के बातों के हिसाब से, इफ वी रियली वांटेड टू प्रोवोक, आई वाज द इंचार्ज ऑफ द गचबौली area when the elections were going on, the university was under me, and if we really wanted to provoke the students there and to make it when they were giving slogans, on BJP also, we controlled them. Our chief minister very categorically he gave instructions that law and order should be maintained and nothing should have, if we would have provoked there, the officers and all the people would have been vandalized. But we did not take that. Take a proper report from the post-mortem report. See that only after the death incident we were known. And after that proper action was taken and we have really controlled each and every mob there. And even the university we didn't go and we didn't talk post-mortem report. That's what I'm saying. For post-mortem report, manga ke dekho. That allegation what she has put on us is absolutely wrong. No, only because she has to keep that record straight, madam, and you have to take the out of you, because we were midst of that elections and we did not want to side anybody, but in the same way we have really taken care of Mr. Dattatreya there. Our chief minister has given proper instructions to take care of him. Okay, okay. Yes, Mr. Minister. Yes. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे निर्देश दिया है जो चर्चा हुई है उस संबंध में कुछ बोलने का, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सहयोगी स्मृति ईरानी ने जो आज चर्चा के बाद अपनी स्पीच दी है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि स्मृति ईरानी की यह स्पीच इस संसद के लिए ही आई ओपनिंग नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सारे देश के लिए आई ओपनिंग। मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या। कुछ ऐसा शेष नहीं बचा है कि मैं इस सदन के सामने में रखूं। हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं में से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और मैं यह मानता हूं कि वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारी सरकार यह कभी नहीं मानती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, कभी नहीं मानती, क्योंकि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आज अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रखर मेधा के धनी लोगों को यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। तो उस विश्वविद्यालय के बारे में हमारी सरकार की जो धारणा है उस धारणा को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की अथवा किसी भी शिक्षण संस्था की एक बहुत बड़ी पूंजी होता है, बहुत बड़ी वह निधि होता है। और छात्रों के जीवन में के संबंध में भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं, इस संसद में बैठने वाले सारे के सारे लोग छात्र हैं। छात्र का जीवन बहुत आंदोलनकारी होता है। जुल्म और अत्याचार हो और उसका वह विरोध करे तो मैं समझता हूं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है।
और उस मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण यदि कोई करता है तो मैं समझता हूं कोई भी जागरूक समाज उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ है और जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस संबंध में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, सही करती है, गलत करती है, सही करती है तो मैं समझता हूं कि इस देश की अदालत उसे जस्टिफाई करेगी, और यदि गलत करती है तो फिर उसको सेडिशन का चार्ज या अदालत ही समाप्त कर सकती है, उसके सारे आरोपों से वो बरी कर सकती है। लेकिन उस संबंध में मैं समझता हूं कोई बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन को इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हां, पटियाला हाउस कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है पुलिस उस संबंध में कार्रवाई कर चुकी है और आगे भी कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषी हैं वह दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, यह भी आपके माध्यम से सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदया, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिनांक 9 फरवरी 2016 को जो भी नारे जेएनयू कैंपस में लगाए गए उससे सारा देश असहमत है, और पूरे सदन ने कमोबेश पूरे सदन ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। पूरा का पूरा केस इस समय सब जुडिस है। मैं समझता हूं कि न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में भी एक दो माननीय सदस्यों ने कुछ बात कही है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन में कि जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर मैं बोलता हूं, निराधार कभी नहीं बोलता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने भी गोपनीयता की शपथ ली है। इसलिए आज के अवसर पर इतना, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी सहयोगी स्मृति ईरानी को आज की स्पीच के लिए बधाई देते हुए अपना संबोधन समाप्त करता हूं। यस, ठीक है, बहुत ही अच्छा सब है। अब हम शून्यकाल केवल जो 20 लोगों का है, नहीं दुष्यंत, अब इस पर कुछ नहीं बोलना है, और उतना शून्यकाल ले लेंगे, उसके ज्यादा नहीं। किरीट सोलंकी जी, यस, बोलो। किरीट सोलंकी जी। धन्यवाद स्पीकर महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं गुजरात में जखौ समुद्री क्षेत्र में गुजरात के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके रोजगार के लिए जाते हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी सुरक्षा दलों के द्वारा उनको पकड़े जाते हैं, उनकी बोट को भी जब्त की जाती है। ऐसे करीबन 281 भारतीय मछुआरों और उनकी 844 बोट्स पाकिस्तान से के कब्जे में है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले उन्होंने जो मछुआरों की, चाहे वो तमिलनाडु के हो या गुजरात के हो, उनको छुड़वाया था। मैं भारत सरकार से गुहार करता हूं, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन मछुआरों को छुड़ाया जाए और उनकी बोटों को वापस लिया जाए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। दीप सिंह राठौड़, ये वो यही सब्जेक्ट पे आपका है। यस, बोलिए। पिछले 3 महीने से मैं गुजरात के कच्छ दरिया किनारे से बहुत बड़ी संख्या में मछुआरों को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा उनकी नाव समेत उठा जा रहा है। गरीब मछुआरों की जिंदगी हाई फिशरी की होती है, जा रही है। मेरी आपसे माध्यम से सरकार से विनती है कि गुजरात के मछुआरों की सेफ्टी के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए और पाकिस्तानी
जेलों में बंद मछुआरों की छुट्टी कर सम्मत रिहाई करने वाले की किए जाए और कार्यवाही तुरंत हो सके। थैंक यू। श्री बी श्रीरामलू इज देयर? नहीं है। थैंक यू। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, आप तो छोड़ेंगे ही नहीं। Thank you, Madam Speaker. Madam, my zerover submission is in respect of having a separate ministry for overseas Indian affairs. Yes, yes. Madam, according to a survey conducted by the UN Department of Economics and Social Affairs, India has the largest diaspora population in the world. Yeah. There are about 25 million Indian migrants as of now, spread across 200 countries, and India topped the chart with $70.4 billion among the remittance receiving countries in the world. Considering the significance of this fact, UPA government established a separate ministry, Overseas Indian Affairs Ministry, and was effectively functioning. But recently, Government of India has decided to merge the Overseas Indian Affairs Ministry with the External Affairs Ministry without any in-depth study or discussion with the stakeholders. The division of merger is against the interest of the NRI community. A separate ministry is indeed essential to look after the affairs and ensure the welfare of NRIs and non-resident Indians. And therefore, it is urged that the decision of merger of two ministries be reviewed and Overseas Indian Affairs Ministry be retained as such. Thank you, ma'am. श्री नाना पटोले जी। अध्यक्ष महोदय, भारत देश के राज्यों में विभिन्न प्रांतीय भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। राज्य की आर्थिक नगरी मुंबई हो या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर मराठी भाषी लोग रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे राज्यों से आकर बसने वाले लोग भी बड़े सरल और सुगम तरीके से मराठी बोलते हैं। मराठी भाषा हिंदी भाषा की तरह बड़ी सरल और सुगम है। इसको ग्रामीण क्षेत्रों और अति पिछड़े क्षेत्रों में भी अनपढ़ लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर भी बिलवती समझा जा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। प्रश्न तुम्ही मराठीमध्ये उचलू शकत होता। श्री दुष्यंत चौटाला जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बेहद ही आहत हूं क्योंकि मेरा प्रदेश आज हरियाणा पूरी तौर पर जल रहा है। कुछ लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग मानने के लिए सड़कों पर उतरे, पर निरंतर इस सदन के एक साथी ने उन लोगों को उकसाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश के ऐसे हालात है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नहीं 11 जिलों के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर निरंतर इस सदन के एक सदस्य ने पिछले 1.25 साल से लोगों को उकसाने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाईचारा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने संघर्ष कर 1966 के अंदर लाने का काम किया था, आज लगभग वो भाईचारा पूरी तौर पर टूट चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से मांग करूंगा कि ये वो पूरा वाकया जिसके अंदर पक्ष के और प्रतिपक्ष के कुछ लोग मिलकर हमारे प्रदेश की जो भाईचारे की भावना थी उसको तोड़ने का जिन ने काम किया है, एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाकर उन सब लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करे और इस पूरे वाक्य के अंदर जो विक्टिम्स हैं उनको कम से कम 25 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आज हमारी केंद्र की सरकार काम करे, क्योंकि पिछले 9 दिन हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। आज केंद्र की सरकार ने बात हो गई जब इंटरवीन किया, और मैं धन्यवाद करूंगा राजनाथ सिंह जी चले गए, उनकी इंटरवेंशन के बाद आज हरियाणा प्रदेश में दोबारा अमन चैन सुख शांति आई है। केंद्र की सरकार को सभी दोषियों को जिनने
ये भावना भटकाने का काम किया था, Yes, yes. उनको सजा दिलवाने का काम करे। श्री धन्यवाद। दीपेंद्र सिंह जी, आपका भी वही विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से जी पूरे सदन का ध्यान पिछले करीब एक हफ्ते से हरियाणा और विशेष तौर पे मेरे लोकसभा क्षेत्र में बने हुए दर्दनाक, दुखदायी और अत्यंत गंभीर घटनाक्रम की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हरियाणा सहित मेरे लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा की ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई जिनमें जान और संपत्ति का इतना नुकसान हुआ हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 21 जानें जा चुकी हैं, जबकि सच्चाई सामने आने पे यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। एसोचैम के अनुसार 36,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की खबर है। बहुत सारे लोगों की संपत्ति, दुकान व जीविका के साधन आदि नष्ट हो गए। सदन के माध्यम से मैं हिंसा से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति गहरी सांत्वना प्रकट करना चाहता हूं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, जैसे अभी तुषार जी ने भी वह बात कही, कि हरियाणा में हुई इस हिंसा से सदियों से चले आ रहे प्रेम, भाईचारे और छत्तीस बिरादरी के सामाजिक ताने बाने पे गहरा असर पड़ा है। आज मैं इस दुख की घड़ी में राजनीति की बात करने खड़ा नहीं हुआ। मैं दो प्रमुख मांगे आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि यह इतना नाजुक मामला है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि निष्पक्ष जांच ना होने का असर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने पे पड़ सकता है। इसीलिए मेरी मांग है कि 19 तारीख को घटनाक्रम ने हिंसक मोड़ कैसे, जो अभी बता रहे थे मेरे से पहले बोलने वाले कि पहले शांति प्रिय चल रहा था, 19 तारीख को हिंसक मोड़ कैसे लिया और अगले 3 दिनों तक हालात प्रदेश सरकार के नियंत्रण से बाहर कैसे बने रहे, इस बात की जांच मेरी मांग है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध ढंग से कराई जाएगी। थैंक यू श्री पी। उसके साथ साथ जिन परिवारों में बेकसूरों की जानें गई हैं और जिनका संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई सरकार तुरंत करे। इसके अलावा कई और सवाल भी उठते हैं। आखिर कमी कहां रही? राजनीतिक हैंडलिंग में रही है, प्रशासनिक हैंडलिंग में? कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। इस जिम्मेदारी से प्रदेश सरकार कतई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। पिछले 2 दिनों में हरियाणा के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक ने पूरी घटना के लिए बाकायदा बयान देकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश सरकार इस मामले में निपटने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। मैं यह भी मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और इस मामले की सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी पूरी इंक्वायरी हो सके, ताकि सच सामने आए। और जो भी कुलमणि सामल इज देयर, पूरा टीवी में दिखा रहे, पूरा टीवी में दिखा रहे, केवल दो डिमांड पर बात ठीक है। मुख्यमंत्री ये पूरा उत्साह किया और वायलेंस को प्रेरित किया, ऐसा टीवी में आ रहे। हम राजनीति में जाना है क्या? लोग उस तरफ मार गए और वहां का उनका नुकसान हो रहा है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। सबने देखा है किसने प्रोत्साहन किया, किसके हाथ इसके पीछे है, सब विषय जांच होगा तो बाद में हो जाएगा। अननेसेसरी राजनीति मत करिए। जी कुलमणि सामल जी, बस हो गया, जांच हो जाएगा, चिंता मत करो, जांच हो जाएगा। मगर राजनीति मत करो दीपेंद्र, अभी राजनीति मत करना प्लीज। कुलमणि सामल जी। Honorable Speaker, Madam, I may kindly be permitted to speak from this place. Yes, you are. Madam, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise an important issue for consideration of Honorable Minister of Railways to name the Puri Paradip Superfast Express train in the name of Mahakovi Sarala Das. Madam, I would like to state that Sarala Das, known as Adi Kavi and Sudramuni, is a 15th century poet and scholar of Odia literature. It is hard to believe that how a self-educated man from a remote hamlet named Kanakpur of coastal Odisha, which belongs to my parliamentary constituency, Jagatsinghpur, could venture an incredible feat to write Mahabharat, Ramayana and Chandi Puran along with many more Odia. It is important to note that he is the first scholar to write in Odia. As an originator of Odia literature, his work has formed an enduring source of
information Yes, please, on Odisha's please. history, Thode se- religion, Yes. civilization, culture, philosophy, etc. for succeeding generation. The sense of Odia nationality has appropriately been reflected in his writings. Yes, okay, So, yeah. to memorize the Demand contribution karo, of that's such a all. great personality, Yes. I would like to urge upon the Minister of Railways to name the superfast train running Shri from Puri to Mullapalli Paradip Ramachandran is not there. via his Keshav birthplace, Prasad Maurya. Kanakpur, in Jagatsinghpur as Mahakavi Saraladas Sorry, superfast express train. Okay. Thank you, madam. Yes, Ramchandran ji. Respected Madam Speaker, Yes. thank you very much for having given me this opportunity. Yes. Through you, Madam, I wish to draw the attention of this August House to a burning issue regarding the sad plight of rubber farmers across the country. The sharp falling price of natural rubber has caused deep distress to more than 10 lakh rubber farmers in Kerala and elsewhere. The decision of the government to allow indiscriminate import of rubber is intended to support powerful industrial lobby and corporate houses. The small and marginal rubber farmers are on the verge of abject poverty, and it was impossible for them to make a livelihood. The attitude of the government towards rubber farmers is careless and cruel, and I urge upon the government to put a ban on the indiscriminate import of natural rubber. I also request the government to announce a package to the tune of 1,000 crores to the state of Kerala or to the rubber board to ensure fair and remunerative price for the natural rubber. Thank you, ma'am. केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में एशिया का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है उस ओर ध्यान दिलाते हुए देश की न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमों के निस्तारण को लेकर के एक देश के सामने बड़ी समस्या है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा श्री राम जन्मभूमि मुकदमे का। 14 जनवरी 1950 को यह मुकदमा दाखिल हुआ माननीय अध्यक्ष जी, और 66 साल हो गए, अभी उस मुकदमे का निस्तारण नहीं हुआ। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मेरा जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसमें 160 न्यायाधीशों के पद सृजित हैं, और आज की तिथि में वहां केवल 77, हमारी लखनऊ पीठ को मिलाकर के 77 न्यायाधीश ही वहां पर हैं।